Hello students, this is our fourth lecture of projectile motion. पहले तीन लेक्चर में what we have done, you are recalling something? First lecture, we discuss about basics of projectile motion. Then we derived some formulas, formula of range, maximum height, then what? Time of flight, right? Then we solved problems based on these basic formulas and equations of motions, equations of kinematics, right? Then in next lecture, we derived formula for equation of path. Equation of path means what? The path along which particle moves, also called as what? Trajectory. There are two forms of equation of path. One is what? Y equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Other equation is what? Y equal to x tan theta in bracket 1 minus x upon r. Using this equation, how we tackle the problem? Number of problems were solved. In this lecture, we'll solve problems which are based on basic formulas plus equations of motion. Some problems are from a previous JEE exam also. Okay, so we start. So when you listen any lecture, you must know background from previous lecture. That means what is, in this case, it is what is a projectile motion. Basic equations are what, right? That is very, very important. So we start. Yes. Now see here. What is given in this problem? In this problem, what is given? For two angles of projections, range is same. Somewhere we discussed this part है ना कि for same range there are two angles. Which two angles? एक रहता है theta, the other one is complementary angle 90 minus theta. We'll get what? Same range. और उसका height same नहीं रहता है. Heights are different, right? This one I think we have done in our first lecture, right? For two angles of projection, range is same and maximum heights are h1 and h2. Because when range is same but angles are different, then their heights are not same. Find relation between this h1, h2 and r. Simple figure I will draw here so that again it becomes easy. See here. First I will represent what? Say this one is nothing but what? Ax axis. Okay. And this one I will represent here a y axis. This is y. Okay. Now once projectile is projected, thrown from this location, it moves along a parabolic path and finally strikes the ground. This is at one angle, you can say theta. At other angle 90 minus theta, when it is thrown, it attains a different maximum height and finally strikes the ground at same location. That means if we take this one is case 1, या आपका आ गया case 2, right? And if I'll represent here what? Say for first case, this one is u. I'll assume here angle is what? This angle is say theta. Always you are taking inclination of velocity with horizontal as what theta. But other one what is projected is at such angle where we'll get what? Same range. So this angle must be what? So this angle should be 90 minus theta. Okay. This is what? 90 minus theta. For first case, what maximum height will get here, I'll represent here what? Suppose h1. Okay. And for second case, what height will represent here, we'll get at same location actually. Yeah? So I'll represent here. ये जो next है, this will be what? Height h2. Okay. That means when it is thrown at an angle of theta, height is h1. When it is thrown at an angle of 90 minus theta, height is what? h2. And in both the cases, what range you will get is what? R. Simple. Okay. Now you must know h1, h2 means height, maximum height, right? Maximum height formula, if you are recalling, if for case 1, right? The range is same for what angles? So for these two angles, theta and theta 2. For same range or range जो है, that one is what? Range is same. For what? For which angles? So for angles theta 1 and theta 1 नहीं, theta you can say ना, theta and 90 minus theta. Okay. एक थीटा पे थ्रो किया, अदर वन इज 90 माइनस थीटा. दैट मींस और एक 30 रहेगा तो 90 माइनस 30 एक 60, 30 60 20 70 10 80, राइट? सच एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ
for this first case, for first case number 1 means here, what is the maximum height? h1. What is the range? r. What is the angle? Theta. For first case, if we'll write here, what is maximum height, right? This maximum height is represented by what? First case के लिए क्या represent किया है? h1, right? Formula of maximum height is what? u square sin square theta upon g or 2g, it is the 2g. U square upon 2g into sin square theta. Now from this equation, if we'll write what? U square sin square theta, now we'll write u sin theta. So u sin theta becomes what? U square sin square theta is 2g h1, and if we take root, right? So we'll get u sin theta, and what we'll get here? Root of 2g h1. Okay, this is u sin theta. Say equation number 1. Same thing for next case, right? At what angle? For angle for 90 minus theta I am writing now. Okay, first I written this one is for what? For which angle? For theta. केस नंबर 1 है ना, दिस केस नंबर 1 थीटा. केस नंबर 2 के लिए थीटा क्या होगा? देखो 90 माइनस थीटा फॉर सेकंड केस है ना. फॉर दिस केस मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? h2, राइट? मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? h2. What will write? u square upon 2g. अब ये जो साइन थीटा नहीं हो जाएगा ना, दिस विल बी व्हाट? साइन ऑफ 90 minus theta and its square, right? Correct. अभी साइन ऑफ 90 minus theta क्या होता है? If you know, the sin of 90 minus theta क्या होता है? Cos theta. That means this will be what? U square upon 2g. ये हो जाएगा आपका cos square theta. This is what? h2. Now u square cos square theta becomes 2gh2. That means can you write u cos of theta is what? Root of 2gh2. That means एक u sin theta का वैल्यू आ गया है, एक आ गया आपका u cos theta. This is h1 h2 relation written, and you have to relate it to what? Range. What is the formula of range? Number 3 है ना. Range is same for both the cases. Range is given by r equal to what? U square sin of 2 theta रहता है ना, u square sin 2 theta upon g. This is our standard formula of range. But now what we'll do, we'll try to substitute this u sin theta, u cos theta in terms of h1 h2, so that range in terms of h1 h2 is possible. तो ये जो u square है, that means you can write u. sin 2 theta in terms of sin theta cos theta पता है क्या होता है? तो ये हो जाएगा u square. This will be what? 2 sin theta cos theta. 2 sin theta upon cos theta upon what? G. So r is given by now u square upon g, and sin 2 theta I written as 2 sin theta cos theta. ये अपना standard formula है, right? Now this range I will write like this कि this one is what? This 2 I will take common, 2 outside divided by this one is g, 2 and g. Now what you can say, this will be u will split up, u sin theta first term, u cos theta ये second term आ गया, right? U sin theta and u cos theta. You know u sin theta means what? U sin theta क्या रहता है? देखो इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू रिटन हियर है ना, u sin theta is root of 2gh1. u cos theta is what? देखो u cos theta is what? root of 2gh2. अभी जम गया काम, सिंपल. देखो रूट ऑफ 2gh1 है, रूट ऑफ 2gh2 है, दैट मीन्स r इक्वल टू 2 अपॉन g. इधर से आप 2g दोनों है ना, कैन यू टेक 2g, दिस विल बी व्हाट? कॉमन. तो वो बाहर निकलेगा तो उसका रूट निकल जाएगा, बिकॉज 2g 4g स्क्वायर हो जाएगा ना. तो दिस विल बी व्हाट? ये 2g एंड रूट ऑफ व्हाट? h1 h2. ओके, नाउ g गेट्स कैंसल, 2 हो गया आपका 4. दैट मीन्स r इज व्हाट? 4 times root of h1 h2, right?
That means relation between this range and this maximum heights for same range h1 h2, that relation is given by r equal to 4 times root of h1 h2. सब समझ में आया? किधर रिपीटेशन चाहिए? देखो simple formula of what maximum height we are using, right? And for these two complementary angles will get maximum heights. That heights are h1 h2 given in problem. So simply we'll find out h1 h2. So for first case, as it is theta means single formula, right? From that one u sin theta निकालना है. For 90 minus theta complementary angle, so theta now angle of projection becomes 90 minus theta. Sin square 90 minus theta becomes what? Cos square theta. That means u cos of theta आ गया. रेंज का फॉर्मूला पहले sin 2 थीटा को स्प्लिट अप किया 2 sin थीटा cos थीटा, सो दैट u sin थीटा आ गया u cos थीटा है. उधर इक्वेशन 1 से u sin थीटा इज 2j/h1, इक्वेशन नंबर 2 से आ गया sin cos u cos थीटा इज व्हाट 2j रूट ऑफ 2j/h2. सब्स्टिट्यूट किया और निकाला, तो व्हाट यू आर गेटिंग r इक्वल टू 4h1. नोट डाउन राइट. नहीं होता है तो पॉज करके नोट डाउन करो, राइट. विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. हेलो, रेडी फॉर सेकंड प्रॉब्लम? See here. Now in next problem, second problem, this is see carefully. A figure is not given. We'll draw figure as per wording of problem. A projectile is thrown with a speed of 100 meter per second, making an angle of 60 degree with the horizontal. Simple. That means u is given, angle of projection is given 60 degree. Fine. Next, find the time after which the inclination is 45 डिग्री. ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि इनिशियल एंगल अगर 60 है तो बाद में कुछ 45 मीन्स रिड्यूस होते जाता है कि नहीं एंगल? सी हियर, ये सपोज दिस वन इज व्हाट, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, दिस इज व्हाट, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस. नाउ एक्स एंड दिस एक्सिस इज व्हाट, वाई. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. Initially when particle is projected, so this will move along such path, right? Now initially what angle is given, that is important. How much is angle? 60 degree, right? See here, ये आ गया आपका u. Angle is what? 60 degree. Angle 60 degree. इसको ना रिजॉल्व करते हैं. हाँ, इसको अगर रिजॉल्व किया तो एक कॉम्पोनेंट आ गया आपका हॉरिजॉन्टल. ये क्या होता है? ux. This is what? uy, है ना? uy. Now this ux and uy, if you concentrate, this one is ux. Huh? Ux becomes what? u cos 60. Okay, u cos of 60. u is how much? 100. हाँ, cos 60 क्या होता है? हाफ. दैट मीन्स आपका ux होगा आपका 50 मीटर पर सेकंड. जस्ट आई विल फाइंड आउट फर्स्ट वन कंपोनेंट्स. हाँ, देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू. uy इज व्हाट? u sin 60 है ना. वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा बिकॉज इंक्लिनेशन इज गिवन विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल इज गिवन विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos, वर्टिकल कंपोनेंट sin. तो आपका uy मीन्स u sin of 60. दिस वन इज व्हाट? 100. sin 60 क्या होता है? √3/2. That means can we say this is what? 50√3. Now if you are recalling our equations, हाँ, आपका जो ux रहता है, right, is nothing but vax is nothing but vbx. ये जो है ना, this one remains constant. Why this component remains constant? तो along x axis there is no acceleration, because acceleration कौन से डायरेक्शन में है? वर्टिकल. which acceleration? acceleration due to gravity. तो आपका horizontal component will not change. number one. vy जो है, that one vertical component of velocity, right? if you find out that component, as the time increases, that component will go on reducing. that means अभी सपोज ये जो वर्टिकल कंपोनेंट अभी जो ui आ गया है, दैट इज व्हाट? 50√3. तो जैसा टाइम पास होता जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेकंड, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट छोटे होता जाएगा. जैसा कंपोनेंट अगर छोटा होता है तो क्या हो जाएगा? इसका इंक्लिनेशन जो है, u का इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल मींस इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, दैट विल गो ऑन रिड्यूसिंग. देखो एक इधर हॉरिजॉन्टल भी होता है. टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? एट टॉप मोस्ट पॉइंट. ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हियर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, तो आपका एंगल ना 0 हो जाता है. इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आता है, राइट? दैट इज नथिंग बट v, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ux, राइट? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? इधर 0. उधर से तो आपका इक्वेशन आया था मैक्सिमम हाइट का.
As vertical component reduces, ये जो एंगल पहले जो था थीटा इज 60, दैट वन विल गो ऑन रिड्यूसिंग. तो अभी 60 है, तो व्हेन इट बिकम्स 40, क्वेश्चन इज व्हाट, आफ्टर व्हाट टाइम, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इंक्लिनेशन इज 45. दैट मीन्स इफ आई अज्यूम कि से दिस वन इज अ पॉइंट से ए where velocity I'll represent as a VA, and what angle is given is nothing but what, 45 degree. तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, दिस वन इज से VAY एंड VAY विल बी लेस देन UY. बट आपका जो VAX है ये आपका सेम रहने वाला है, सेम एज दैट ऑफ UX. अभी ये जो ट्रायंगल है, फ्रॉम दिस वन यू नो व्हाट, यू नो UX मीन्स VX, एंगल पता है, इधर से वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं. देखो कैसा निकालेंगे, ये आपका वेलोसिटी, VA, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई विल रिप्रेजेंट राइटवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट यू कैन ट्रांसफर हियर, राइट. आपका इधर जो था ना, इधर से हियर यू आर रिप्रेजेंटेड ना VY और VAY, राइट. तो ये इधर से उठा के इधर डाल दिया, दिस वन इज व्हाट VAY. इधर VAX मीन्स व्हाट UX, एंगल पता है, एंगल क्या है 45 डिग्री. एंगल इज व्हाट, ये आपका एंगल आ गया 45 डिग्री. यू नो UX इज व्हाट, UX क्या है 50 मीटर पर सेकंड. UX पता है मीन्स VX पता है. दैट मीन्स आप अगर tan ऑफ दिस एंगल लेते हैं 45, राइट, तो tan ऑफ 45 बिकम्स व्हाट, अपोजिट VAY, adjacent UX, right. That means this will be what, VAY upon UX क्या है 50 and VAY, tan 45 कितना रहता है 1. That means this will be what, VAY is what 50 मीटर पर सेकंड. ऐसे भी स्टैंडर्ड है, एंगल 40 पर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड जो रहता है परपेंडिकुलर साइड, दे आर ऑलवेज इक्वल. दैट मींस यू कैन राइट डायरेक्टली एज एंगल इज 45, UX इज व्हाट VAY, देयर इज नो इशू, राइट. Now this one what we are getting here, ये आ गया आपका tan of 45, तो VAY आ गया. Now VAY you are getting, you know what UX, but ये VAY 50 हो गया. अभी पहले कितना था, तो that UY was 50√3. Now 50√3 था, अभी 50 है, तो this will take how much time, that is important. वो कहाँ से निकालेंगे, तो you know equation of V means VY you can say is what UY minus GT, ऐसे इक्वेशन है ना. तो VY आपका आ गया VAY मीन्स व्हाट 50, U कितना है आपका 50√3 माइनस G इज 10 इंटू T. दैट मीन्स आपका 10T हो जाएगा 50√3 माइनस 50. दैट मीन्स 50 यू कैन टेक कॉमन, ये आपका √3 माइनस 1. दैट मीन्स T 50 डिवाइडेड बाई 10 में आपका 5 हो जाएगा, है ना, 5√3 माइनस 1 सेकंड. दिस इज आवर आंसर, राइट, 5√3 माइनस 1. दिस क्लियर, सिंपल प्रॉब्लम है. whenever some time is asked about some inclination, right, तो horizontal component always remains constant. thumb rule ध्यान में रखने का, horizontal component सेम रहता है, vertical component will go on reducing. तो आपको एंगल पता है तो उधर से आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, एंगल पता है तो आराम से वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं. जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन लगाने का, VY इक्वल टू UY माइनस GT और UY प्लस AYT. AY क्या रहता है G नेगेटिव, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू विल गेट व्हाट T. क्लियर, चलो नोट डाउन सो दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, रेडी फॉर थर्ड प्रॉब्लम. सी व्हाट इज गिवन, सिंपल, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, नॉट डिफिकल्ट. द हाइट y and distance x along a plane of a projectile on a certain planet, means अर्थ नहीं दिया है, any different planet. okay, that means different क्या रह सकता है, acceleration due to gravity. along a plane on a of a projectile on a certain planet are given by x equal to 60 and y equal to 80 minus 5t square, right. फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी ये क्वेश्चन से ना कुछ पता नहीं चलता है एक्चुअली, है ना. ऐसा आपका u0 पता रहता है, थीटा 0, फाइंड रेंज, फाइंड मैक्सिमम हाइट, सच डेटा इज नॉट गिवन. बट x इज नोन इन टर्म्स ऑफ टाइम t, ax t के टर्म में,
y is also in terms of time t. That means here it's not difficult actually. ये जो x है, this one if I'll write here as what, ये आपका 60. Okay. If we'll differentiate x with respect to time t, क्या आता है? Velocity. But ये along x है, that means we'll get what? Component of velocity along x-axis आएगा, that means dx by dt if I'll write. If I'll differentiate this x with respect to time t, this will be what? Vx. And what is the differentiation of 66 into 1? ये आपका 6 हो जाएगा, right? Vx means आपको horizontal component of velocity मिल गया, simple. ऐसे ही अगर y का इक्वेशन दिखा है ना, y is what, देखो 8t minus 5t square है ना, minus 5t square. If we'll differentiate this y with respect to time t, तो this will be what, ये आपका vy रहता है, component of velocity along y-axis, because y you are differentiating with respect to time t, vy. x differentiate किया with respect to time t, तो vx, simple. Differentiation of it हो जाएगा 8 minus 5 into 2 हो जाएगा 10t, right? Vy is what, 10t. If you are recalling our equation of velocity, vy means v क्या रहता है, u plus at. That means इसका ये जो equation है, that is what, vy equal to uy plus ayt. That means आपको इधर से क्या मिलेगा कि 1 is nothing but your uy क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, एंड ay क्या होगा आपका -10. अरे प्लेनेट तो अर्थ हो गए ना, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, ay -10 है, मींस आपका g है ना, दिस वाले इज व्हाट, g का वैल्यू आ गया, राइट. दैट मींस वो जो प्लेनेट, अगर वो क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन डाल देते थे कि आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द प्लेनेट, राइट, तो वो g जो आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज व्हाट, -10, नेगेटिव डाउनवर्ड, तो इट इज नथिंग बट अर्थ, सिंपल. नाउ व्हाट यू आर गेटिंग, आपका Vx जो है दैट इज व्हाट 6 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, दैट मींस Vx इज व्हाट Ux व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 6 मीटर पर सेकंड. ये इंपॉर्टेंट पार्ट. ऐसे आपका Uy आ गया ना, Uy इज व्हाट, Uy आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड. With two components of velocities, if you know, can you find out velocity of projection and angle of projection? आपका acceleration due to gravity तो आ गए, ये आपका एक आंसर आ गया ना, ये थर्ड आंसर है आपका, ये पहले आ गए, राइट. ux and uy if we'll represent here on x and y axis, ये आपका ux, right, this is what uy. अगर ये u निकलना है तो ये आ गया आपका hypotenuse मींस u, ये एंगल आपका थीटा. कैसा निकलते हैं वेलोसिटी, u equal to पाइथागोरस थ्योरम, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर. क्या मिलेगा इधर से, u equal to स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है ना, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा आपका 6 8 10 का ट्रायंगल है ना, 10 मीटर पर सेकंड, रूट ऑफ 100 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर 36, 36 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100. एंड इसका एंगल निकालना है तो ये यू वाई अगर इधर शिफ्ट किया है ऐसा, राइट, तो आपका यू वाई लेंथ ऑफ वेक्टर सेम है, दैट मींस tan ऑफ दिस एंगल थीटा इज व्हाट यू वाई अपॉन यू एक्स. यू वाई क्या है 8, ए कितना है 4, दैट मींस थीटा बिकम्स व्हाट 4, मिस्टेक हियर, यू वाई इज 8, यू एक्स कितना है, यू एक्स 6 है, ये 6 है, दैट मींस दिस विल बी व्हाट 4/3. दैट मीन्स थीटा इफ फुल राइट, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3. ये अगर आपको पता है एंगल क्या रहता है 53 एंगल रहता है ना अराउंड, राइट, यू कैन से इट इज अ स्टैंडर्ड ट्रायंगल वेयर ये अगर ट्रायंगल निकालते हैं अपोजिट कितना 4, एडजेसेंट कितना 3, ये कितना हो गया 5, ये ट्रायंगल कौन सा एंगल के लिए रहता है 53 डिग्री. That means you can say theta is what 53, or if we'll write tan inverse of 4/3 then also okay, no problem. समझ में आ गया. देखो ये अगर x y दिया रहता है, कभी vx vy दिया रहेगा तो उसको vx को इंटीग्रेट करने का, x निकालने का, y निकालने का, so that we'll get position or coordinates of point on trajectory. Okay, चलो note down fast and again we'll solve next problem. Okay, ready for next problem? See here, a figure is not given, मस्त प्रॉब्लम, एकदम फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम.
a fighter plane flying horizontally, डायरेक्शन दिया है ना, horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर किधर से हो जाएगा, ग्राउंड से, with a speed of 720 किलोमीटर पर आवर. That means first will convert what, this one velocity of a plane जो है, right, that is what 720 किलोमीटर पर आवर. इसको ना सिंपल ध्यान में रखने का. 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10 मीटर पर सेकंड. अभी 36 तो 360 का हो जाएगा 100, 720 का हो जाएगा 200. 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकंड. नहीं तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो तो मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आवर का सेकंड करो 3600 तो मीटर पर सेकंड में आएगा. और 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड. ओके. अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर. देखो अभी इधर ना एक फिगर बनाता हूँ फटाफट. हाँ, ये सपोज एक वर्टिकल लाइन, just a reference, and this is what, a ground. Okay, and plane is moving in horizontal direction. So this one I'll write as velocity of plane. Which one you have calculated? That means in meter per second you have converted. 200 meter per second. ये height कितना दिया है? 1.5 किलोमीटर. Okay, 1.5 किलोमीटर. ठीक है, चलो next. A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. Directly overhead, that means आपका anti-aircraft gun किधर रहेगा, ग्राउंड पे इधर. जब परफेक्ट इसके ऊपर हो है ना, एग्जैक्टली इसके ऊपर जब रहेगा, राइट, तब ये इसका वेलोसिटी दिया है, हाइट दिया है. दैट मीन्स आपका एंटी एयरक्राफ्ट गन किधर है, ग्राउंड पे. एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल निकालना है, शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विथ मजल वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड टू हिट द प्लेन. इसको अगर हिट करने का रहेगा तो ऐसा वर्टिकली अपवर्ड अगर थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, दिस विल मूव अपवर्ड. तब तक तो ये आपका प्लेन निकल जाएगा, फाइटर प्लेन राइट साइड में, हिट नहीं होगा. दैट मीन्स यू हैव टू थ्रो इट विथ सम inclined direction. Say this one is nothing but direction if will represent. I'll write this is what, say u of what, say bullet or shell, like this. अगर and you have to find out angle with what, vertical. अभी normally you are taking inclination with what, horizontal theta. अभी ये किससे पूछा है, vertical से. I'll write different angle है ना, say alpha लिखते हैं इधर है ना. Now once any body is thrown, वो straight line में नहीं जाता है, this will move like this. प्लेन जा रहा है लाइक दिस, तो ये प्लेन को हिट हो सकता है, राइट. व्हेन इट हिट्स द प्लेन, राइट, कंडीशन दिया है, इट मस्ट हिट द प्लेन. व्हाट शुड बी इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विथ वर्टिकल, ये आपको अल्फा निकालना है. ओके, एक तो आप हॉरिजॉन्टल से निकालो, 90 से माइनस करो तो वर्टिकल से मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है. नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट, बुलेट कितना दिया है, यस 600 मीटर पर सेकंड, ये दिया है 600 मीटर पर सेकंड. अभी ना सिंपल सिंपल है एकदम, सिंपल, नॉट डिफिकल्ट. इसको अगर रिजॉल्व किया मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई विल रिप्रेजेंट हियर. आपका ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, यू बी. अब ये अगर अल्फा के टर्म में चाहिए ना, तो अल्फा के टर्म में आपका ये साइन अल्फा हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका कॉस अल्फा हो जाएगा. अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बुलेट, ये होगा आपका प्लेन का वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल है. अभी दोनों का पोजीशन ये सेम वर्टिकल लाइन पे है. दैट मीन जब प्लेन इधर जाएगा, राइट, एंड बुलेट इधर से स्टार्ट करके उसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. दैट मीन जब हिट करेगा तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर प्लेन एंड फॉर दिस बुलेट आर सेम, देन ओनली यू कैन से दैट विल हिट. अगर ये सेम नहीं रहेगा तो दैट बुलेट और शेल डजंट हिट द प्लेन. तो कंडीशन है दिया है कि गन यू हैव टू फायर एट व्हाट एंगल सो दैट कैन से शेल विथ सम मजल वेलोसिटी 600 टू हिट द प्लेन. कंडीशन ही है. दैट मींस तो ये अगर मोशन कंसीडर करते तो सिंपल x ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x ऑफ दैट शेल और बुलेट. प्लेन का जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इवन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज दे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है. That means
ये जो आपका xp है दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन इनटू टाइम t, दोनों का टाइम भी सेम रहेगा बिकॉज एग्जैक्टली अबोव दिस बुलेट वो प्लेन रहेगा, या बुलेट कहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन के गन किधर है, एग्जैक्टली बिलो दिस प्लेन, राइट। आपका दोनों एक ही टाइम से मोशन स्टार्ट हो जाए, आपका टाइम सेम रहेगा। बुलेट का x कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट मींस व्हाट विल गेट हियर यू बी, ये क्या है आपका साइन थीटा ना, साइन अल्फा है ना, यू बी साइन अल्फा इनटू व्हाट टी, आपका टाइम सेम है इधर तो टाइम टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो गया। दैट मींस नाउ व्हाट विल राइट हियर, वीपी कितना है देखो 200 है ना, एज इट इज, यू बी क्या है 600 इनटू व्हाट साइन अल्फा, आ गया जी आंसर, ये देखो, हाँ साइन अल्फा इज व्हाट 200 अपॉन 600, ये तो 1/3 होता है ना, 1/3, दैट मीन्स अल्फा बिकम्स व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1/3, करेक्ट, क्लियर, सिंपल है ना, किधर कुछ डाउट नहीं, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रहेगा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, then only that shell will hit the plane। अभी नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज आस्किंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट ऐसा पूछा है कि एट व्हाट अल्टीट्यूड मींस हाइट शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, यानी ये जो शेल है दैट शुड नॉट हिट द प्लेन, ऐसा अगर कंडीशन रखे। अभी ये जो आपका प्लेन है दिस वन बुलेट है और शेल है, ये आपका ऐसा ऐसा जाएगा ना एंड फाइनली स्ट्राइक, यानी इसका एक किधर तो ना मैक्सिमम हाइट रहता है, उसके ऊपर से अगर प्लेन को पास किया तो दैट विल नॉट हिट। दैट मीन्स आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आएगा कि ये जो बुलेट इधर से फायर किया है, शेल जो फायर किया है, इसका अगर मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हैं ना, वो तो आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज आपको एंगल पता होगा, अभी यू पता है, विल फाइंड आउट। सपोज आपका मैक्सिमम हाइट अगर 10 किलोमीटर आता है तो पायलट को बोल देंगे भाई 10 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर से चले जाओ, क्योंकि ये जो शेल है ये इसके ऊपर नहीं जाने वाला है ना, तो दैट हाइट विल फाइंड आउट and then accordingly will give that instruction to what pilot of the plane, simple। that means now for bullet or for shell, for bullet will find what, find maximum height, that is what, yes, maximum height कैसे निकालते हैं आपको पता है, that is what u square, ये आपका क्या रहता है sin square theta upon 2g है ना, sin square theta, बट इधर साइन स्क्वायर थीटा ये हॉरिजॉन्टल है ना, बट आपका तो एंगल वर्टिकल से पता है, ओके तो यू साइन थीटा मींस व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना, यू साइन थीटा, ऐसा वेलोसिटी रिजॉल्व किया तो वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, अरे ये आपका अल्फा के टर्म में ये आपका यू कॉस अल्फा भी हो जाएगा ना, यू बी कॉस अल्फा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट रहता है, दैट मींस दिस वन यू कैन राइट एज व्हाट यू बी कॉस अल्फा है ना, u b square cos square alpha, one and the same thing, this is what, ये समझ में आया कि नहीं, this one is actually vertical component of velocity। अभी horizontal से एंगल दिया रहता है तो will take u sin theta, तो ये आपका फॉर्मूला में u sin theta आ गया, बट ये अगर in terms of alpha लिखना है तो it becomes cos of this angle, u cos of this angle is vertical component, that means you can write u b square cos square alpha। तो आपको u b पता है, यस है ना 600, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉट 10, अभी इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट, देखो इधर बनाता हूँ ट्रायंगल है, देखो ये सपोज ऐसा एक ट्रायंगल, हाँ आपका ये जो एंगल है ना दिस वन, ये आपका जो एंगल अल्फा है ये साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है, दैट मीन्स अपोजिट 1, तो आपका ये हो जाएगा 3, ऐसे कुछ ना, करेक्ट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये साइड मिल सकता है क्या, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, ये रूटेड हो जाएगा, दैट मीन्स इधर से आप cos अल्फा कैन यू से इट इज एडजेसेंट मीन्स √8 है ना अपॉन 3, यस परफेक्ट है ना, cos अल्फा इज √8 अपॉन 3, अगर ये इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी cos अल्फा इज √8/3, √8/3 इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 600 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 200, ये √8 का स्क्वायर 8 एंड ये हो जाएगा 9, इसको ना जरा कैलकुलेट करके देखो, राइट, कटकुट करके कुछ तो आंसर आएगा, दिस विल बी अराउंड 1600 मीटर
दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर। दैट मीन्स ये जो मैक्सिमम हाइट है 16 किलोमीटर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एट व्हाट अल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड विंग हिट? पायलट शुड फ्लाई द प्लेन above 16 kilometer height, right? Pilot should fly above 16 kilometer height. Okay, then that shell will not hit the plane. चलो समझ में आ गया? Move to next problem. Okay, next problem will solve. चलो बच्चे लोग सब रेडी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए? यस, चलो विल सॉल्व नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम नंबर 5. This problem is from JEE main in 2014. This question was a simple question. एकदम simple question. What is given? The position of a particle launch from the origin at t equal to 0. Launch from the origin. That means point of intersection of x y axis जो रहता है उधर से इसको launch किया है. Miss projected, miss fired. ये आपका suppose ऐसा ऐसा x y axis. This is x axis, this one is y axis, and launch from the origin at t equal to 0. ये origin इधर से ऐसा गया आपका u, ये हो गया, राइट? व्हाट एंगल? थीटा. क्या हो जाएगा? तो ये आपका पार्टिकल ऐसा 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 मूव होते जाएगा, राइट? चलो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन एट t equal to 0 is given by r bar equal to 40i plus 50j at t equal to 2 सेकंड. दैट मीन इधर एक ऐसा पोजीशन दिया एनी पॉइंट से p, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा ना कुछ x y, राइट? तो ये जो कोऑर्डिनेट्स रहता है मींस व्हाट, इसका इधर का एक डिस्टेंस आएगा एंड एक ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा. वर्टिकल डिस्टेंस जो है दिस वन इज y एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका x, और xy आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, एज टाइम पासेस आपका xy चेंज होते जाता है ना. बट ये जो दिया अभी आर बार, दिस इज गिवन एट t इक्वल टू 2 सेकंड. दैट मीन्स आपको ये दिया है ना, आर बार इक्वल टू 40i प्लस 50j एट t इक्वल टू व्हाट टाइम? 2 सेकंड. दैट मीन्स ये जो 2 सेकंड पे फुल अज्यूम कि इधर अगर t आपका 2 सेकंड है एंड आपको पोजीशन p आ रहा है, तो ये आपका आर बार जो है ये आपका दिस इज इन विच फॉर्म? xi प्लस yj. दैट मीन्स क्या दिया है? x इज 40, y इज व्हाट? 50. एकदम सिंपल हो गया. एट व्हाट टाइम? एट t इक्वल टू 2 सेकंड. यानी 2 सेकंड के आपको xy पता है. अगर xy पता है, आपको g दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, xy का इक्वेशन अगर यूज करेंगे, राइट? x क्या रहता है? ux इंटू टी प्लस नेक्स्ट पार्ट एक्सीलरेशन 0 है तो 0 हो जाता है. देन v इक्वल टू व्हाट और y इक्वल टू व्हाट? uy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? तो इधर से आपको ux uy मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. व्हाट इज आस्किंग प्रॉब्लम? इफ द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, द थीटा इज tan inverse of something, tan inverse tan. That means you have to find out theta. अब एकदम सिंपल. along x axis आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो, x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. x क्या रहता है? 0. दैट मीन्स x है आपका 40, ux व्हाट विल राइट? u cos थीटा इंटू t कितना है? 2. दैट मीन्स आपका u cos थीटा हो जाएगा 40/2 मीन्स 20 आ गए ना, ये नंबर 1. नेक्स्ट जो है इफ ऑल राइट इक्वेशन ऑफ व्हाट? y. इक्वेशन ऑफ y क्या रहता है? इक्वेशन ऑफ y और इक्वेशन ऑफ काइनेटिक uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, राइट? अभी uy इक्वल टू uy इज व्हाट? uy अननोन है, y पता है ना, विल सब्स्टिट्यूट y हियर, है ना? y कितना है? ये इधर आ गया ना, y is 50. परफेक्ट. चलो 50 u sin थीटा विल राइट, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट इज व्हाट? u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा लिखा है. t आपका 2 है प्लस हाफ ay आपका -10 आएगा. ऑलवेज विल सब्स्टिट्यूट विद नेगेटिव साइन बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू व्हाट? ये 2 स्क्वायर आएगा. दैट मीन्स ये देखो कितना होता है? 2 स्क्वायर हो गया 4, 4/2 हो गया 2 मीन्स ये -20, है ना? दैट मीन्स u sin थीटा 2u sin थीटा यू कैन से इज व्हाट? 50. और ये टर्म इधर लाएंगे ना, 50 प्लस
कितना हो जाएगा 4 4 20 है ना, दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट 70 हो गए, दैट मीन्स u sin थीटा कितना हो जाएगा इधर, u sin थीटा बिकम्स व्हाट 35। ये नंबर 2, u sin थीटा एंड u cos थीटा अगर पता रहेगा तो यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल इजीली, राइट। u sin ऑफ थीटा दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर किया तो क्या मिलेगा इधर, u sin थीटा अपॉन u cos ऑफ थीटा, दिस विल बी व्हाट 35 डिवाइडेड बाय 20, 5 से डिवाइड होता है 7/4 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, ये अल्फा नहीं रहे, दिस वन इज व्हाट थीटा। ये देखो यू साइन ऑफ एंगल अपना क्या है थीटा, यू कॉस ऑफ व्हाट एंगल थीटा, तो क्या मिलेगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल टू 7/4, दैट मीन्स थीटा क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 7, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ये आएगा ना tan इनवर्स ऑफ 7/4, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ बच्चे कंपनी रेडी, what we'll do now, we'll solve next problem. These are today's 6th problem in this lecture. This was asked in JEE in 2014, मस्त प्रॉब्लम है, बट एक स्टेप में आंसर आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखो क्या कह दिया है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इज 630 मीटर पर सेकंड। ओके, द राइफल इज फायर्ड at the center of the target 700 meter away at the same level as the target, that means जिधर टारगेट है जिधर से फायर किया है both are at same level, मीन दोनों ग्राउंड पे है ना, that means सीन आपका if you create that scene राइफल टारगेट, तो ऐसा कर सकते हैं कि say this one is a ground, okay, ये ग्राउंड हो गया, this is ground and this one is thrown so that आपका जो राइफल से बुलेट निकलेगा that will move and then that will strike somewhere here। तो आपका ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आपका ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट, ये आपका टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका ना डिस्टेंस दिया है कि सेंटर ऑफ टारगेट, इधर टारगेट का सेंटर है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, फर्स्ट क्लास है ना, हाउ मच 700 मीटर, फाइन, ये 700 मीटर आ गए। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इज 630 मीटर पर सेकंड। द राइफल इज फायर्ड एट द सेंटर ऑफ द टारगेट 700 मीटर अवे एट द सेम लेवल, same level as the target. How far above the center of the target? Above the center of target, that means ये ऐसा गुजरेगा, see above the center of target, मैं इधर से ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, how far above, right, the center of, ये आपका टारगेट का सेंटर लाइन, ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया, right, how far above the center of the target the rifle must be aimed in order to hit the target, यानी इधर से ना ऐसा निशाना लगाना पड़ेगा इधर से कि बाबा ये ऐसा थ्रो किया, इधर से ऐसा अगर थ्रो किया कि ये ऐसा इधर का एक पॉइंट पकड़ा तो आपका ये इधर तो टच नहीं होता है ना, दिस विल मूव वेयर, ये आपका जाता है ड्यू टू ग्रेविटी दैट वन मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका ऐसा पाथ है, सपोज है ना पाथ है, दिस इज यू, दिस वन इज योर एंगल थीटा, दैट मीन्स यहाँ से मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज वेरी, हाउ फार अबोव द सेंटर ऑफ द टारगेट, ये सेंटर ऑफ टारगेट, इधर से हाउ फार अबोव द सेंटर ऑफ टारगेट द राइफल मस्ट बी एम, इधर से ऐसा एम, इधर से निशाना लगाया तो इधर ठुस करके हो जाएगा इधर, है ना, ये डिस्टेंस निकलना है, ये तो सपोज ये एच है ना, ये आपका एच, ओके, हाउ फार अबोव द सेंटर ऑफ द टारगेट द राइफल मस्ट बी एम इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट, दैट मीन जब इधर ऐसा निशाना लगाएगा ना तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स हियर ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिड्यूसेस, सो आपका पैराबोलिक पाथ आएगा एंड फाइनली स्ट्राइक द टारगेट। आपका यू दिया है ना, हाउ मच 630 मीटर्स पर सेकंड। अभी ये जो ट्रायंगल ओ से टी एंड ए, तो ये जो ट्रायंगल आ गया आपका ट्रायंगल ओ टी ए, ये आपका रेंज है ना, दिस इज व्हाट रेंज,
आपका रेंज पता है, यू पता है, दैट मीन्स आप ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स इसको tan लिख सकते हैं ना, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये देखो एच अपॉन आर, तो ये आपका हो जाएगा एच तो अननोन है, आर इज व्हाट 700। ओके, एक tan थीटा का एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी tan थीटा का आ गया, अभी आपको इधर ना 700 मीटर पता है, 700 मीटर पता है मीन्स व्हाट, रेंज पता है, तो रेंज का फॉर्मूला डालेंगे, बिकॉज जो नोन है वो फॉर्मूला यूज करते जाएंगे तो सोल्यूशन आने का चांस रहता है। रेंज पता है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ना, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन व्हाट, अपॉन जी। ये तो साइन थीटा में, इधर टू tan, ये आपको एनी हाउ ये साइन थीटा, साइन 2 थीटा तो tan में आ सकता है क्या, तो इफ यू नो मैथमेटिक्स ना, अभी छोटा छोटा आपका चालू होगा रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स पता रहना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आता है ऐसा। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, क्योंकि tan थीटा आपका एच एंड ये 700 मीटर मीन्स एच एंड आर के टर्म में, तो हियर sin 2 थीटा इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर that 2 tan theta means ये आपका u square by j as it is आ गया, and I will write this one is what 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, है ना, ऐसा आ गया। अब ये इधर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, r इंटू जी इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2u स्क्वायर tan थीटा। परफेक्ट, यस। अभी देखो क्या क्या पता है, रेंज पता है, यस रेंज इज नोन, tan थीटा यू कैन पुट एज h अपॉन 700, इधर u पता है, यस दैट मींस आपका tan थीटा मींस h मिल सकता है, इधर देखो 700 g विल पुट एज व्हाट 10 1 प्लस, देखो tan ऑफ थीटा क्या होगा h अपॉन 700, तो ये h स्क्वायर ये 700 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर टर्म है, इक्वल टू 2 u कितना है 630, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस ये बहुत बड़ा आएगा इक्वेशन, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ इट इज इजी। ये आएगा h अपॉन 700, तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखो इसको ना रीअरेंज द टर्म्स, तो ये आपका इधर देखो ये आपका 7000 लगभग हो जाएगा, प्लस ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो h स्क्वायर अपॉन, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7000 से, इधर 700 का स्क्वायर, तो इधर कुछ तो आपका 70 के आसपास बचेगा, एंड ये जो टर्म है दिस विल बी व्हाट, इधर एक h का h स्क्वायर ये होगा, एक आपका कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज व्हाट 200, ये आपका 630 स्क्वायर ये h अपॉन 700, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये आएगा एच स्क्वायर, थोड़ा इसका कैलकुलेशन करो ये प्रॉपर, 79380 हो जाएगा, एंड प्लस 490000, एंड देन इफ यू फाइंड आउट दिस हाइट एच, आपका दो आंसर आता है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर इक्वेशन है, दिस विल बी व्हाट एक 6.17, एंड नेक्स्ट जो आएगा ना दैट वन इज व्हाट 79373, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। आंसर में क्या है, सब सिंगल डिजिट में है, दैट मींस व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, 6.1 मीटर, है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट बी 6.1। ओके, चलो नोट डाउन, विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया ना, एकदम सिंपल है एक्चुअली। आपका ये एक नया सब्स्टिट्यूशन है, tan थीटा जो आएगा ना h अपॉन आर, वो आपके ये एक रेंज का फॉर्मूला, रेंज में ना sin 2 थीटा tan के टर्म में लिख दिया, एंड tan यू नो h अपॉन आर मींस 700, तो काम सिंपल होगा। छोटा छोटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखने का, और वो याद हो जाएगा बिकॉज बहुत टाइम है अभी, मैथ्स में हो जाएगा तो आराम से हो जाएगा। ओके, चलो विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अप टू दिस प्रॉब्लम, previous problem what you have done, normally a projectile is fired from ground से start हो गया, ground पे touch हो गया, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, एंड जो वेलोसिटी था u that was inclined at some angle, right, but now what will do, अगर horizontal रहेगा तो क्या हो सकता है ना, means when velocity is horizontal it is called as horizontal projectile motion, inclined रहेगा तो called as oblique projectile motion।
सपोज ये ऐसा ना, एक ऐसा सपोज एक बिल्डिंग है, हाँ, एंड ये आपका ऐसा बिल्डिंग, ऐसे वॉल हो गया बिल्डिंग का, इधर है ग्राउंड, दिस वन एक ग्राउंड इधर, यस एक ग्राउंड बन गया फर्स्ट क्लास. नाउ one body which is here at topmost location, maybe ball है उधर से kick मारा and it is thrown, ऐसा throw किया, right, या kick मारा, तो उसका velocity जो है that is in horizontal direction and this one is a point from where motion starts. तो क्या हो जाएगा, एक तो horizontal direction में velocity है, तो due to acceleration due to gravity, वो तो आपका acceleration due to gravity किधर आता है, always acts in downward direction, h ही है, right. Now this one ball or body or particle moves along some path and finally it strikes the ground. ये suppose आपका आ गया any point से A, right. Now if I'll assume कि ये जो part है this one is what, say vertical height of building, right. And ये जो distance है तो horizontal distance traveled by projectile है, therefore this is called as what, range. That means this one you may write as what, r. अभी if we'll take any point here, any point means what, जैसे उसमें इक्वेशन ऑफ पाथ में किया था ना कि से दिस वन इज व्हाट, ये सपोज पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y, ओके. अभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसा टू डायरेक्शन है, तो विल प्रिफर टू राइट लाइक दिस. ये आपका हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन, इधर आएगा आपका y डायरेक्शन और x एक्सिस y एक्सिस. x डायरेक्शन में जो ux है वो तो आपका u है, राइट. y डायरेक्शन में आपका uy क्या है इधर, ये तो है ही नहीं इधर, बिकॉज इनिशियली पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा तो वर्टिकल में कंपोनेंट नहीं आएगा, है ना. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो रहता है, बिकॉज it is motion under gravity और particle is subjected to acceleration due to gravity. तो आपका ay जो है this will be what, minus g. अभी ये आपका basic part, right. This one will prefer to write always so that solving problem becomes easy. अगर ये motion consider करते हैं कि motion from O to this point P, O से P तक का अगर मोशन कंसिडर किया, एंड इफ विल राइट इक्वेशन अलोंग x एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट अगर xy है मींस ये डिस्टेंस क्या रहेगा x, और ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी व्हाट, ये आपका हो जाएगा y, है ना. तो चलो xy का इक्वेशन लगाते, x इक्वल टू, है ना, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. अब ये आपका x, ओके, ux इज व्हाट u एंड दिस वन इज अ टाइम t प्लस, ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज एक जीरो है. दैट मीन्स आपको इधर से ना सिंपली t मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड u, ओके, t इन टर्म्स ऑफ x एंड u. y का इक्वेशन लगाते तो क्या मिलता है, देखो y इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, y तो y है, uy जीरो है, प्लस हाफ ay क्या है माइनस जी, ये क्या आएगा आपका टी स्क्वायर. दैट मीन्स y इज व्हाट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. देखो y जो टर्म है ना ये आपका आ रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. व्हाट इट रिप्रेजेंट, आपका y नेगेटिव है. y नेगेटिव मीन्स व्हाट, ये व्हेन विल सब्स्टिट्यूट, ये आपका फाइनल पोजीशन सपोज है ना, बिकॉज O2P मोशन है कंसीडर, ये आपका इनिशियल पोजीशन. तो जब इधर से नीचे जाएगा मींस बिलो x एक्सिस अगर मोशन है तो आपका y इधर जब डालेंगे तो दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव. दैट मीन्स आपका इधर से आएगा y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इधर y, दिस वन क्लियर ना, बिकॉज फाइनल पोजीशन अगर बिलो इनिशियल पोजीशन रहेगा, इधर y है. सपोज 30 20 60 मीटर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट विद व्हाट, नेगेटिव साइन. जैसा O2A कंसीडर करते हैं तो आपका y क्या हो जाएगा माइनस h, O2P कंसीडर करें तो माइनस y. दैट मीन्स y हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ जी, आपका t क्या आ गया x अपॉन u, इसका स्क्वायर, है ना. दैट मीन्स ये हो गया 2y, ये क्या हो जाएगा
2y और y इक्वल टू g अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब इसमें ये जो टर्म्स है, which terms, g कांस्टेंट है, हाँ, 2 कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, once it is thrown that one is what, constant, that means can you say y equal to what, ये कांस्टेंट, सम कांस्टेंट x स्क्वायर, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, पैराबोला, तो ये जो पाथ रहता है दिस वन इज व्हाट, ऑलवेज पैराबोलिक, सिंपल। अभी इसका ना टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालते हैं, time of flight means total time required for projectile to reach to final position, time of flight यानी from where to where, किधर से किधर तक का टाइम रहेगा, किधर से स्टार्ट होता है मोशन, ये इधर से स्टार्ट होता है, वो से किधर एंड होता है, ए पे एंड होता है, राइट। ओ टू ए मोशन कंसिडर करेंगे, आपका y है माइनस एच, y क्या है माइनस एच, तो आपको इधर से t मिल सकता है ना, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो जो टाइम लगेगा ओ टू ए मोशन कंसिडर है, दिस वन वी आर कंसिडरिंग मोशन फ्रॉम ओ टू ए, समझ में आ रहा है ना, ओ टू ए मोशन कंसिडर किया, y इज व्हाट माइनस एच, यू वाई क्या है 0 प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी, और ये स्मॉल टी को कैपिटल टी कर देंगे, ये तो 2h हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 2h अपॉन जी मीन्स टी हो जाएगा रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन अप्लाई इक्वेशन लाइक दिस, जो डेटा रहेगा उसमें डाल दो, फटाफट फटाफट आंसर आएगा, राइट। अच्छा, इधर थोड़ा शॉर्टकट में रेंज भी निकालने थे, राइट। तो हियर रेंज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट रेंज क्या रहता है, आर, आर कैसा निकालते हैं, तो हियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है ना, मीन्स व्हाट, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो, तो आपका ए 0 रहता है, तो आपका सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। यू एक्स मीन्स इधर यू है ना, यू एक्स क्या है, यू है, इंटू और टी, टी क्या है अभी निकाला आपने, 2h अपॉन जी, एक तो यू को बाहर रखो, नहीं तो अंदर डालना है तो अंदर रख सकते हैं ना, तो दिस इज व्हाट, ये आपका फॉर्मूला ऑफ रेंज, ओके, ये नोट करो बिकॉज दिस वन इज इंपॉर्टेंट, राइट। इधर जब हॉरिजॉन्टल रहता है ना, तो आपको ये पक्का ध्यान में रखने का है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल रहेगा तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है दैट वन इज व्हाट 0, और ये तो आपका हमेशा 0 ही रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट। चलो नोट करो एंड विल सॉल्व अगेन प्रॉब्लम्स। बच्चे लोग रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। हाँ, व्हाट इज गिवन, projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high, that means इसका अगर फिगर इफ आई ड्रॉ हियर, चलो इधर बना देगा, इधर बनाता हूँ, हाँ इधर ही बनाते, दिस वन इज टॉप ऑफ अ हिल, इधर तो ऐसा सपोज टॉप ऑफ हिल में से दिस पॉइंट, ओके, एंड ग्राउंड आई विल रिप्रेजेंट से दिस वन इज अ ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड होगा। नाउ from the top of a hill a particle is projected, projectile is fired, तो इसका जो velocity है this one is what horizontal है ना, this one is horizontal velocity, तो ये आपका u is how much 98 मीटर पर सेकंड दिया है, हाइट ऑफ हिल 490 मीटर दिया है ना, दिस इज 490 मीटर, ये प्रोजेक्टाइल किधर जाएगा, so this will move along a parabolic path and finally projectile strikes the ground somewhere here. Suppose point O, this one is what, say point A, simple. Chalo, what is asking problem one by one, up to this one there is no problem, projectile is fired horizontally, तो आपका एंगल जो है वो थीटा 0 हो जाएगा with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find out time taken to reach the ground, number 1, distance of the target from the hill, that means आपका ये निकलना पड़ेगा ना, from the hill, ये आपका distance means range, velocity with which projectile hits the ground, that velocity you have to find out, ठीक है, we'll see how to find out. First आपका जो है important x axis, y axis if we'll write, ux is what, u ये आपका 98 दिया है, आपका u y जो है दिस वन इज 0 बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
ए एक्स आपका 0 रहता है, ए वाई होगा आपका माइनस जी मीन्स -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये ओ टू ए ऐसा जा रहा है तो इसमें y कितना रहेगा, तो ये 490 हाइट है। फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन, अगर फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन तो आपका y जो है दैट इज व्हाट माइनस दिस साइड है ना, एंड x जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट r। ये ऐसा आप जो गिवन डेटा रहता है दैट वन इफ यू राइट लाइक दिस इट बिकम्स इजी। अभी पड़ा आंसर आएगा। अभी देखो नंबर 1 फर्स्ट time taken to reach the ground, that means motion from where to where, O to A, right? तो O to A में आपको टाइम निकालना है, y पता है, that means you can use y equal to what, uyt plus half ayt square, correct? Simple our equation, y equal to ut plus half at square. Y is what minus 490, uy आपका 0 है because horizontal direction में projectile is fired, plus half ay is -10, ये t, that means easily आपको इधर से t मिल सकता है, ये 490 into 2 हो जाएगा divided by what, देखो 490 into 2 divided by 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, that means ये कितना आएगा, ये 490 कुछ गड़बड़ तो नहीं आ, हाँ 80 स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर देखो कितना होता है 490, यानी ये इसको अगर 9.81 करते हैं राइट, तो आपका ये अराउंड ये 100 हो जाएगा। ये टी विल बी व्हाट, टी स्क्वायर मीन्स ये टी आपका आ जाएगा रूट मीन्स व्हाट अराउंड 10 सेकंड। अगर 10 लेते हैं तो स्लाइटली प्लस माइनस यू कैन से नियर बाय 10 सेकंड, ये आपका फर्स्ट राइट। अभी नेक्स्ट जो है this one is what is asking problem, distance of the target from it, अरे तो सिंपल हो गया, this will be what x means what r equal to what ux into t। अभी आपका r ux means u 98 into what 10, ये तो आपका डायरेक्ट आ गया 980 मीटर। सिंपल हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो ये केस में एकदम सिंपल है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम आ गया एंड व्हाट यू नो इज व्हाट रेंज आ गया आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपको ना इधर वेलोसिटी निकालना है, अभी देखिएगा थोड़ा केयरफुली, ये जो वेलोसिटी किधर भी ऐसा वेलोसिटी अगर निकलना रहेगा ना तो ये आपका इंक्लाइंड वेलोसिटी है, ए व्हाट पॉइंट वी हैव टेकन से ए, तो दिस विल बी व्हाट वी ए। इन इंक्लाइंड वेलोसिटी विल गेट ऑलवेज व्हिच कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो एक कंपोनेंट रहता है, इसको लिखेंगे वी वाई, ये हो जाएगा वी एक्स। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, दैट मींस आपका वी ए एक्स जो है दैट इज व्हाट यू एक्स व्हिच इज व्हाट यू व्हिच इज नथिंग बट 98 मीटर पर सेकंड, ये तो 98 ही लगेगा। नाउ यू वाई निकालना है मींस वी ए वाई, अभी वी ए वाई अगर चाहिए बिकॉज वी एक्स एंड वी दोनों मिलेगा तो इजीली पाइथागोरस थ्योरम से आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा एंड इंक्लिनेशन आल्सो विल गेट। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज मस्ट, तो फॉर्मूला क्या रहता है वर्टिकल कंपोनेंट का, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और बेसिक फॉर्मूला। तो यू वाई इज व्हाट, ये तो 0 है बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, माइनस ये आपका हो जाएगा 10 टी और 9.8 इंटू टी करो राइट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है से उधर 9.8 लिया तो 9.8 इंटू 10 कितना है आपका 10 सेकंड, तो दिस विल बी व्हाट ये -98। अरे ये तो सेम आ गए ना ये हाँ दोनों सेम है, दैट मीन्स ये सिंपल हो गया अभी। अभी वी वाई इज व्हाट 98 मीटर पर सेकंड एंड दिस विल बी व्हाट डाउनवर्ड। क्लियर, ये आ गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर दोनों कंपोनेंट सेम है तो ये एंगल आपको डायरेक्ट मिल जाता है ना 45 डिग्री है ना। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज व्हाट वी ए, ये होगा वी एक्स, दिस इज व्हाट वी ए वाई। एंगल सपोज पॉइंट ए है तो थीटा ए किया राइट, स्क्वायर रूट ऑफ वी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी ए वाई स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मीन्स आप ऐसा कर सकते हैं ना 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, 98 कॉमन हो जाएगा, 98 तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1 2 हो जाएगा एंड थीटा ए
tan इनवर्स ऑफ VAY अपॉन VAX, दोनों सेम है, tan इनवर्स ऑफ 1, एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। सिंपल। दैट मीन्स प्रॉब्लम एकदम डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा फाइनल वेलोसिटी रहेगा। अब ये दोनों कंपोनेंट सेम आ गए, अदरवाइज व्हाट यू टू डू, इधर मैग्नीट्यूड आएगा कुछ एंड देन एंगल आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ one more problem will solve and then we'll stop this video. Okay, all you written, चलो we'll move to next problem. रेडी बच्चे लोग? अभी देखो क्या प्रॉब्लम में दिया है, सिंपल प्रॉब्लम है। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, आई विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन। ये आपका इधर ऐसा ग्राउंड, a body is projected or thrown from where, top of a tower, strikes the ground। पहले तो ये हॉरिजेंटली थ्रो किया है ना, दैट मीन्स हियर इफ आई रिप्रेजेंट, ये सपोज अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए पॉइंट ओ, तो आपका वेलोसिटी ये ऐसा आएगा u, है ना। ओके, स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड, दैट मीन्स का जो पाथ है ये अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस वन इज व्हाट, ये आपका पाथ है ना, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। हाँ, ये सपोज पॉइंट ए, ये जो डायमेंशन है दिस वन इज व्हाट, ये आपका एच है ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये रहता है आपका रेंज। सिंपल। A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds. मीन्स क्या दिया है, टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड, नंबर 1, at an angle of 45 degree with the horizontal। that means when it strikes, इसका जो एंगल है ना ये दिया है, that means देखो फिगर में भी ये ऐसा अगर एंगल है ना, दिस वन इज व्हाट VA, तो इसका एंगल दिया है 45। इसका एडवांटेज क्या है 45 डिग्री एंगल का, आपका जो कंपोनेंट्स रहेगा ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम इफ यू आर रिकॉलिंग नियरली सेम है, आपका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों अगर सेम रहेगा तो ये आपका एंगल आता है 45। तो इधर दिया है क्लियरली कि एट एन एंगल ऑफ 45, that means you can see ये डेटा से तो I can write here VAX equal to VAY, confirm है ना, because tan of 45 हो जाएगा opposite upon adjacent, 45 रहेगा तो tan 45 is 1। okay, find the height of the tower and the speed with which the body was projected। that means आपको क्या निकालना है, U निकालना है and H निकालना है ना, speed with which the body was projected and the height of the tower। सिंपल। अभी हाइट निकालना है, टाइम पता है ना। अभी आपका देखो UY क्या रहता है, ये आपको अभी पता होना चाहिए ना, लास्ट प्रॉब्लम सेम थे, UY क्या रहता है 0, UX क्या रहता है U। दैट मीन्स एज अ टाइम यू नो, इफ यू कंसिडर दिस मोशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, O to A, कैन यू अप्लाई इक्वेशन ऑफ Y? यस, इन वन स्टेप आंसर इज पॉसिबल। आपका क्या बेसिक फॉर्मूला, UY इक्वल टू SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ये है ना, ये हो जाएगा आपका SY मीन्स व्हाट माइनस H। हाँ, ये दिस वन इज बिलो इनिशियल पोजीशन, तो आपका SY मीन्स व्हाट माइनस H। UY क्या है 0 प्लस हाफ AY, तो आपका वो माइनस हो जाएगा ना, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी पता है, ये 3 है ना, 3 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अरे एच का आंसर तो आ गया, देखते देखते फर्स्ट आंसर आ गया, देखो 44.1 मीटर्स फर्स्ट आंसर। अब ये आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा फटाफट। सेकंड में क्या दिया देखो, आपको ये निकालना है व्हाट, स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। अभी अगर ये निकालना है स्पीड विथ विच बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, मीन्स U निकालना है ना, U के लिए व्हाट इज पॉसिबल, U अगर निकालना है तो U के लिए ये U एंड आपका VX, ये दोनों कंपोनेंट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर से मिलता है तो आपका दैट इज इक्वल टू U। सिंपल। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू U नहीं, यू नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट A आल्सो इक्वल टू VY। VY निकाल सकते हैं क्योंकि इधर तो आपका UY 0 है, VY निकाल सकते हैं बिकॉज द टाइम इज नोन।
दैट मीन्स ये अगर फॉर्मूला लगा आपका वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ये हो जाएगा आपका वी ए वाई, यू वाई तो 0 है, ए वाई आपका -9.8, टाइम कितना है 3, ये हो जाएगा माइनस हाउ मच 29.4 हो जाएगा ना, यस दैट मीन्स ये हो जाएगा 24.9 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव में डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन में वी ए बाय दिख रहा है इधर, ये आपका डाउनवर्ड ही जाएगा राइट। अभी वी ए आ गए तो आपका वी एक्स क्या रहेगा, एंगल 45 मीन्स व्हाट 24.9 मीटर पर सेकंड, बस उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा राइट वन, दैट मीन्स आपका u इक्वल टू यू एक्स इज व्हाट 21 मिनट 9 इंटू 3 ये 24 पॉइंट नहीं होता है, ये 29 हो जाएगा, 29 29 29.9 29.4 उल्टा कर दिया, अरे अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मिस्टेक नहीं करने का, मीटर पर सेकंड, ओके दिस वन वी आर गेटिंग 29.4 मीटर पर सेकंड। ओके नाउ इन दिस वीडियो विल स्टॉप हियर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप क्लिक करके उधर से आप प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज रिमेनिंग, so that one we'll discuss in next lecture, means our lecture number 5, which one is not difficult but it is tricky, right? So we'll discuss some method where all problems will feel are very easy. Okay, chalo, thank you.